پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آئی ایم ایف کو ریونیو اکٹھا کرنے کے اقدامات بارے اعتماد میں لیا گیا۔ مذاکرات میں پاکستان کے طویل ترین پروگرام کے طبی خدوخال پر تبادلہ خیال۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا نئے قرض پروگرام کے لیے پلان تیار۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وفاق اور صوبے نئے طریقہ کار کے تحت مل کر چلیں گے۔ جون میں نئے بجٹ کے ساتھ اہم ترین ٹیکس کی تیاریوں پر گفت و شنید۔ پہلے مرحلے میں وفاق اور صوبے مل کر سیلاب کی تباہ کاریوں کی تعمیر نو کریں گے۔ جون میں فائنانس بل کے ذریعے 9 لاکھ دکانداروں کو فکس ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ ریئل اسٹیٹ اور زراعت کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کے اقدامات ہوں گے۔ آئی ایم ایف کو موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کے بعد بحالی کی نئی حکمت عملی سے بھی آگاہ کیا گیا۔ آئی ایم ایف جائزہ مشن مذاکرات کے حوالے سے اعلامیہ آج جاری کرے گا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت آخری اقتصادی جائزہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ طے پانے کا قوی امکان۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو $1.1 ارب کی آخری قسط ملے گی۔ امریکی سفیر کی آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کے لیے تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ پاک امریکہ اقتصادی تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں اصلاحات کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات اور اہداف پر گفتگو۔ ٹیکسوں میں اضافے اور سرمایہ کار دوست ماحول پر بھی بات چیت۔ دیگر اقتصادی معاملات میں بھی دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی انتظامیہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل میں مدد فراہم کرے گی۔ وزارت خزانہ کا اعلامیہ جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے چینی سفیر کی بھی ملاقات۔ دو طرفہ امور، معاشی صورتحال، سی پیک منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر کا چائنیز آئی پی پیز کو عدم ادائیگیوں پر اظہار تشویش۔ وزیر خزانہ کی چینی سفیر کو آئی پی پیز کو ادائیگیوں کی یقین دہانی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے مذاکرات پر کابینہ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملکی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ ای سی سی کے فیصلوں کی توثیق بھی کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کویتی سفیر کی ملاقات۔ نصر عبد الرحمن جاسر کی دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہونے پر شہباز شریف کو مبارکباد۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کویت کے ساتھ نومبر میں $10 ارب کے معاہدوں پر بھی اظہار اطمینان۔ کویتی سفیر کا پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امیر کویت کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار لندن پہنچ گئے۔ ایک روزہ قیام کے بعد آج برسلز روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار برسلز میں نیوکلیئر سیکیورٹی سربراہی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا حکم۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور سمیت 12 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا ملزمان کو 2 اپریل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ مراد سعید، شبلی فراز، شیری مزاری، شہباز گل، مسرت جمشید چیمہ، شبیر اوان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ ملزمان کو صداقت عباسی، واسق عباسی، عمر تنویر بٹ کے 164 کے بیانات کی روشنی میں نامزد کیا گیا تھا۔ ملزمان کے خلاف 164 کے بیانات 17 جنوری کو ریکارڈ کروائے گئے تھے۔ ملزمان پر ساتھیوں کے ہمراہ میٹرو بس اسٹیشن 15 آفس اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ من گھڑت اور جھوٹے الزامات پر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے۔ ہم عدالتوں سے انصاف لیں گے۔ یہ مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وفاقی حکومت حواس باختہ ہو کر انتقامی کارروائی پر اتر آئی۔ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اقتدار پر قابض ہوئے ہیں۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا رد عمل۔ حسن نواز اور حسین نواز کو عدالت سے بڑا ریلیف۔ ایون فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ ریفرنس میں بری احتساب عدالت نے حسن نواز اور حسین نواز کی بریت کی درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
बरीयत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट आनी थी। एहतसाब अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, ये केस नैब तरामीम से मुतालिक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हद तक फैसला भी कर चुकी है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का जवाब, अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर एवन फ्लीड और फ्लैगशिप रेफरेंस में दोनों भाइयों को इश्तिहारी करार दिया था। अदालत ने हुसैन नवाज और हसन नवाज के सरेंडर करने पर 14 मार्च को दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर आमद, शहीद के वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर तलगंग भी आमद, शहीद की 5 बहनों और माँ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के अहले खाना को दिलासा दिया, ताज़ियत का भी इजहार किया। मरियम नवाज का दिफाई वतन में जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खराज अकीदत, शहदा की अजीम कुर्बानियाँ शौक़ शहादत और वतन पर मर मिटने के जज्बे की गवाही है। आखिरी दहशत गर्द को जहन्नम हासिल करने तक कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। कौमी अज़्म से दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। हमारे सब्र का इम्तहान लेने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पूरी कौम अपने शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेगी। अमन को हमारी कमज़ोरी समझने वालों की गलत फहमी जल्द दूर हो जाएगी। कौम का हर बेटा कैप्टन अहमद बदर है। मरियम नवाज शरीफ की शहदा के वालिदैन और अहले खाना से गुफ्तगू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मामलात बातचीत से हल करें, अमेरिका का मुतालबा। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी चौकी पर हमला हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हमले किए। तालिबान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। हम चाहते हैं अफगानिस्तान दोबारा कभी दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह न बने। तर्जमान वाइट हाउस का बयान, अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ राब्ते में है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अमरीकी सफ़ीर ने इलाक़ाई सलामती पर बातचीत की। IMF के साथ इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल। कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान पे अटैक करेगा या उसके मुल्क में से बैठ के हमारे खिलाफ प्लानिंग होगी, उसका जवाब उसी तरह मिलेगा जिस तरह हमने पहले जवाब दिया है। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे मौजूद है, उसको जाना पड़ेगा। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब देंगे। किसी भी अमल का फौरी रद्द अमल दिया जाएगा। दहशत गर्दी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आँच नहीं आने देंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को वापस जाना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। हमें घर और जेल का रास्ता पता है। TTP को लाने, मुआशी तबाही, नवाज को फारिग करने पर पूछा चाहिए। जनरल रिटायर्ड बाजवा, फैज़ हमीद और बानी PTI पार्लियामेंट को जवाब दें। मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले ये कौन होते हैं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। पंजाब कबीना ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की अटक जेल से डाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कबीना का तीसरा इजलास। माली साल 2023 और 24 के सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी। लाहौर नॉलेज पार्क को पंजाब सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के सुपुर्द करने की भी मंजूरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए अराजी CBD को मुंतकिल की जाएगी। पंजाब में लॉ अफसरान की तादाद 66 करने और 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी का प्रोजेक्ट भी मंजूर। 12.5 करोड़ आवाम को देखना है, सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए फैसले नहीं करने। नॉलेज सिटी में दुनिया के बड़े बड़े तालीमी इदारों को कैंपस बनाने के लिए मदऊ करेंगे। इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को बाइक्स देने के लिए अलग स्कीम लाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के मुकदमात में बानी PTI बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI को दोनों मुकदमात में बरी किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI के खिलाफ थाना सहाला और लोही बेल में मुकदमा दर्ज किए गए थे। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे।
रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी कर दी। सेनेट इलेक्शन कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। इस्लामाबाद में टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार और रांझा नसर महमूद के कागजात नामजदगी मंजूर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना महमूदुल हसन, फरजान हुसैन शाह के कागजात भी दुरुस्त करार। जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात दायर और दोहरी शहरियत का इल्ज़ाम। जुल्फी बुखारी की बरतानवी शहरियत तर्क करके दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा। जुल्फी बुखारी ने बरतानवी महकमा दाखिला को लिखा गया ख़त भी जमा करवा दिया। सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात उठा दिया। सनम जावेद का वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट रखने वाला उम्मीदवार कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इलेक्शन कमीशन का एतराज़। सनम जावेद और जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी पर आयद एतराज़ात पर फैसला महफूज। सिंध में 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के 17 MKM और PTI के 8 उम्मीदवार शामिल। फैसल बौड़ा के आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कागजात मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने MKM के नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। बलोचिस्तान में 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर। 10 के मुस्तरद। शेदाल खान, नासिर, मुसल्लाउद्दीन, बिलाल मुंदखेल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कोई इख्तलाफ नहीं। इत्तेहाद का फैसला दुरुस्त था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक। मुल्क को आज मैसाके मईशत की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस नारे के साथ आगे बढ़ती रही है कि हम अपना सियासी नुकसान कर सकते हैं लेकिन हम रियासत का नुकसान नहीं होने देंगे। बहुत जल्द हम एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराने जा रहे हैं जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। मईशत को दुरुस्त करना कहाँ से गैर आइनी हो गया और गैर कानूनी हो गया। मुल्क को मैसाके मईशत की ज़रूरत है। मुस्लिम नून सियासत को रियासत पर कुर्बान कर सकती है। जल्द ऐसा निज़ाम मुतारिफ कराएंगे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिले। वज़ीर आज़म का फोकस मईशत पर है। मईशत को ठीक करना कहाँ से गैर कानूनी और गैर आइनी हो गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इत्तेहादियों में वजारतों की तकसीम पर इख्तलाफात बरकरार। बलूचिस्तान में ताहाल काबीना तश्कील ना दी जा सकी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम के फार्मूले पर इत्तफाक ना हो सका। नून लीग की जानिब से बलूचिस्तान में 8 वजारतें और 2 मुशीरों का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का नून लीग को 8 वजारतें देने से इनकार। वज़ीर आला पंजाब ने काश्तकारों पर सफाई टैक्स लगाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से इजलास। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का मॉडर्न मैकेनिज्म नामजद नाफिज करने की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मॉडर्न मैकेनिज्म का प्लान तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का सूबा भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ईरान के काउंसिल जनरल की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सक़ाफ़ती वफ़ूद के तबादले पर भी इत्तफाक। अवाम को एक और झटका देने की तैयारी है। 1 माह के लिए बिजली 500 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा में CPPA की दरख्वास्त पर 28 मार्च को समाअत होगी। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपये से ज़ायद बोझ पड़ेगा।